ہاں جو کونڈے کھا کھا کے، تیجے کھا کھا کے، اور جتنے مردے مر رہے ہیں سب کا ایصال ثواب یہ کھاتا ہے. ایسے بھی ہیں، اس طرح کے بھی ہیں نا. میں ایک واقعہ نہیں بتاتا، ایک بدعتی مولوی تھا، اس کے کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس مولوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تو وہ جمعرات کے کھانے پر بلایا. میت کے لواحقین نے کہا کہ پہلے تو آپ کے ابا کو بلاتے تھے، اب ابا نہیں ہے تو بچے آ جائیں. تو بچے جب کھانا کھانے کے لیے جانے لگے جمعرات کا کھانا، تو بچوں کی ماں نے کہا دیکھو بیٹا، اتنا کھانا ہے کہ باپ کی روح کو تسکین ہو جائے کہ میرے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہو، اور باپ کو بدنام نہیں کرنا، باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا. بدنام نہ، ناک نہ کٹوا دینا معاشرے میں، طبیعت سے پھوڑنا بیٹھ کے نا. باپ کی روح کو خوشی ہوگی کہ آج میں نہیں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مفت کھانے والے میرے بچے ہیں الحمدللہ. تو بچوں نے ماں کی نصیحت یاد آئی، شروع کیا. یہ لطیفہ ہمارے نانا ہمیں سنایا کرتے، خود بھی مولوی تھے وہ ٹھیک ہے نا، مسجد کے امام تھے، اللہ مغفرت فرمائے. بچوں نے طبیعت سے پھوڑنا شروع کی، کھاتے 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 ادموئے ہو گئے نا، چلا ہی نہیں جا رہا ان سے. اماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے. تو بالآخر یہ حالت ہو گئی کہ 2 بندوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے گھر آ رہے. ماں نے دیکھتے ہی چترول لگانا شروع کر دی، کہہ رہے ناک کٹوا دی نا، باپ کی روح کو تکلیف دی. بچے کہنے لگے اماں اتنا تو کھا لیا کہ چلا نہیں جا رہا. کہہ رہی کمبختو، تمہارے باپ کو اسٹیشن پہ رکھ کے لے کر آتے تھے ہیں اور تم چل کے آ رہے ہو. اس کو تو لٹا کے لاتے تھے، 4 آدمی اٹھا کے لا رہے ہوتے تھے اس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو تانا دیا، وہ اسلام پہ اعتراض کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا. آپ نے تانا دیا کہ کیا تورات میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ کو موٹے توند والے عالم سے نفرت ہے؟ تو پہلے اپنا حلیہ تو دیکھ، کھا کھا کے توند نکالی ہوئی ہے، تورات پر عمل کر نہیں رہا جو اللہ نے تمہیں کتاب دی تھی، اور ہمیں کیا کر رہا ہے؟ نصیحتیں کر رہا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تانا بعض صورتوں میں، اس سے ایک تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کو زیادہ کھانا، بولو بھائی پسند نہیں. جمعرات کے بھی کھانے، ادھر سے کونڈے کا کھانا آ گیا، ادھر سے پتہ نہیں کیا کیا کھائے جا رہے ہیں یار. اسلام میں تو بھائی روزے رکھنا ہے، پیر جمعرات کا رومی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش میں آپ نے روزہ رکھا ہے. ہمارے یہاں دیگیں پکتی ہیں 12 ربیع الاول کو نا. اگر فرض کر لو 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے تو پھر تو روزہ ہونا چاہیے. دیگیں ہو رہی ہیں، دبا کے کھا رہے ہیں، کھچڑے پک رہے ہیں، کھیرے کھا رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی یوم ولادت پہ بھی روزہ رکھا. اسلام نے بتایا کہ بھائی توند بھرنا اچھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا، آپ نے اس کو دودھ پیش کیا. مہمان کا اکرام ہے نا، تو کافر کا بھی آپ اکرام کرتے تھے. دودھ پیش کیا، اس نے ایک پیالہ بھر کے دودھ پیا، آپ نے ایک اور پیش کر دیا، وہ بھی پی گیا. آپ ایک اور پیش کیا، وہ بھی پی گیا. 7 پیالے بھر کے اس نے دودھ کے، اور پیالہ بھی اس زمانے کا ہوتا تھا. 7 پیالے بھر کے جب 8واں پیش کیا، اس نے کہا سیر ہو گیا اور حاجت نہیں. اس دودھ کی برکت تھی، نبی کے اکرام کی برکت تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اگلے دن دوبارہ آیا، کوئی آپ نے اسے کم کھانے کی ترغیب نہیں دی. ابھی تو اسلامی تعلیمات اس نے بیچارے نے سیکھی نہیں ہے نا، ابھی تو کلمہ سیکھا ہے، نماز دیکھی ہوگی. اگلے دن دوبارہ آیا، آپ نے پھر اکرام کیا. اسی طرح بھوکا تھا، آپ نے اسے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا، پی گیا. وہ دوسرا پیالہ پیش کیا، فرمایا رسول اللہ سیر ہو چکا ہوں، اب حاجت نہیں ہے. آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. کافر 7 آنتیں بھرتا ہے پیٹ کی، اور مومن 1 آنت بھرتا ہے. 1 آنت میں مومن کیا ہو جاتا ہے؟ مومن چٹورا، سمجھ رہے ہو نا؟ چٹورے سے میری مراد ہے پھوڑنے والا. ایک تو چٹنی کباب کھانے کا شوق ہوتا ہے، وہ نہیں، پھوڑنے والا نہیں ہوتا. کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے. آج ہمارا مذہب کیا ہے؟ کھانا مذہب ہے. بارات کے کھانے الگ کھائے جا رہے ہیں، حالانکہ اسلام میں ولیمہ بارات نہیں ہے. اور پھر مردوں کے تو اللہ کی شادیوں پہ اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا مردوں پہ کھایا جاتا ہے. بھائی وہ میت کہے گی جب میں دولہا بنا تھا تو اتنا میرے ابا نے نہیں کھلایا تھا، یہ میرے نا رشتہ داروں نے. جب میں مرا ہوں تو لنگر ہے کہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا. جو بھی آ رہا ہے کھا کے، اور لوگ کہتے ہیں کھاؤ، یہ کھانا بہت برکت والا کھانا، اس کو کھانا ضرور ہے، آپ نے کھانا ضرور ہے. تو کھا کھا کے ہمارے حضرت ایک شعر پڑا کرتے تھے کہ ہم فراق یار میں، اصل شعر پتہ ہے کیا ہے؟ ہم فراق یار میں گھل گھل کے، وہ کیا ہے یار؟ اصل شعر کچھ اور ہے کہ ہم یار کی جدائی میں نا گھل گھل کے کمزور ہو گئے، مر گئے، یہ ہو گیا. ہر فرمایا کرتے تھے آج کل الٹا چل رہا ہے. نبی کی محبت میں نا، یار کے فراق میں، ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. محبوب کی محبت میں موٹے ہو رہے ہیں، اتنے گھلے
इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। रुस्तम पहलवान था ना, तो नबी की मोहब्बत में पहले जमाने में लोग क्या होते थे भाई, रोजे रख रख के दुबले होते थे। आज नबी की मोहब्बत में इंतहाई स्पीड के साथ फैलते चले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हर पहले वे को ये ना समझे कि वो, मैंने पहले बता दिया, किसी की बेकरामी जायज नहीं है, बाय नेचर भी होते हैं ना लोग, लेकिन और बहुत से कमबख्त इतने बारीक होते हैं मगर होड़ते रहते हैं सुबह शाम। वो कुदरती तौर पे बढ़ा, जिस्म ही नहीं बढ़ता उनका, तो वो जो है ना खाते भी हैं, बदनाम भी नहीं होते। तो एक बड़े भारी भरकम आलिम थे, बहुत भारी जिस्म उनका। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या खाते हैं? उन्होंने कहा मैं खाता ही नहीं हूं, मैं एक टाइम खाना खाता हूं, 2 टाइम का नागा करता हूं, लेकिन फिर भी बदनाम हूं। उन्होंने कहा लोग मुझे देख के कहते हैं पता नहीं इतना खाते होंगे, हालांकि बहुत कम खाते थे वो। तो इस हदीस से हमें एक तो ये पता चलता है कि मोमिन ज्यादा नहीं फोड़ता, वो तभी थोड़ा खाता है जितनी उसकी बॉडी उसको इजाजत देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो इस्लाम कबूल किया, उनकी खुराक खुद बखुद, भाई एक दूध 1 गिलास काफी है हमारे लिए, बस अब दुनिया परस्ती क्या, अल्लाह करो, दूसरे कामों में टाइम लगाओ, चर्बी बढ़ेगी ना और तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जितनी एनर्जी मुझे चाहिए थी वो 1 गिलास दूध में हासिल हो गई। और काफिर का मकसद है लाइफ को एंजॉय करना, तो फोड़ता जाएगा, फोड़ता। अब जो काफिर लोग कम खा रहे हैं ना, वो डॉक्टरों की वजह से कम खा रहे हैं। अब आप ये ना समझे यार आज तो काफिर बहुत थोड़ा खाते हैं, वो तो डॉक्टरों ने उनको डरा दिया है कि मर जाओगे ज्यादा खाने से। तो वो शहवत परस्ती की कमी की वजह से नहीं, वो उनको डॉक्टरों ने बताया कि ज्यादा खाना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा खाते रहो, ज्यादा अरसे तक खाते रहोगे वरना जल्दी मर जाओगे। तो वो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसने ज्यादा खाने के नुकसानात बयान कर दिए हैं। कि एक बिदअती मौलवी जो थे ना, बिदअती मौलवी बीमार हो गया बेचारा। अब लोग मुख्तलिफ, वो सुनता भी ऊंचा, अब कोई आके कह रहा है कि भाई इन मौलाना साहब को अनार का जूस पिलाओ, कोई मशवरा दे रहा है इनको अंगूर का रस पिलाओ, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। एक ने आहिस्ता से कहा इनको दूध जलेबी खिलाओ, तो फौरन एकदम आंखें खोल के कह रहे हैं इसकी तो सुनो क्या कह रही है। इसकी तो सुनो। लोग हैरान कि इतना जोर जोर से बोलने वालों का सुनाई दे नहीं रहा, और इसने आहिस्ता से बोला है, फौरन कह रहे हैं इसकी भी तो सुनो क्या कह रही है। दूध जलेबी अब तो खाना छोड़ दी लोगों ने। तो खैर दूध जलेबी पर भी एक चुटकुला अक्सर सुनाता रहता हूं ना, दूध जलेबी वाले मजनू अलग होते हैं और खून देने वाले मजनू अलग होते हैं। आजकल उल्टा हिसाब चल रहा है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। हमारे हजरत एक वाकया सुनाते थे, बहुत दफा सुनाया है, पुराने नए लोग भी आते हैं, कि एक लैला मजनू के किस्से तो मशहूर है ना। मजनू जो था, लैला उसको मुलाकात का टाइम नहीं देती थी, वो बेचारा इसी गम में घुला जा रहा था। तो उसका नाजायज फायदा एक 2 नंबर मजनू ने उठाया। एक 2 नंबर मजनू था, वो लैला के घर के बाहर जाके चादर बिछा के बैठ जाता, लैला के खादिम से कहता कि लैला को बताओ तुम्हारा दीवाना आया है। अब पहले जमाने में ये आजादियां नहीं थी कि लैला अपने मजनू से जब चाहे जहां चाहे डेटिंग पॉइंट बना ले। को रुकावटें थी, अब्बा की, भाई की, ये सारी रुकावटें। तो लैला कहती चलो मैं मुलाकात तो कर नहीं सकती, कुछ गिफ्ट ही भिजवा दूं, तो दूध जलेबियां भिजवा देती थी वो। ये मजनू साहब तबीयत से फोड़, ये 2 नंबर मजनू था, ये फोड़ फाड़ गए वापस आ जाता और मुस्टंडा होता जा रहा था ना। हम फिराके यार में, फिराक का माना जुदाई, अलैदगी, यार की जुदाई में, अलैदगी में यार से मुलाकात नहीं हो रही। तो हजरत फरमाया करते थे कि ऐसे आशिक मार्केट में आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं बज़बान हाल कि हम फिराके यार में घुल घुल के हाथी हो गए। यानी यार से अलैदगी में, जुदाई में, यार के गम में, माशूक के गम में, बजाय दुबले होने के क्या हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। आजकल इस किस्म के आशिक मार्केट में आ रहे हैं, इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए, रुस्तम पहलवान जैसे बन गए हम। तो आप नबी के आशिकों को भी देख लो, अल्लाह के आशिकों को भी देख लो, बुजुर्गों के आशिकों को भी देख लो, बजाय गम में पतले होने के फैलते जा रहे हैं। और खाने से एक तो कुदरती तौर पर लोगों का जिस्म भारी होता है, वो तो अल्लाह की तरफ से। सहाबा में भी बाज बहुत भारी जिस्म के थे, बाज दुबले, मुहद्दिसीन में भी, ये तो कुदरत की तरफ से है। लेकिन एक मोटापा वो है जो फोड़ने फाड़ने की वजह से हो रहा हो, एक फोड़ना वो है जो दुनिया के लिए हो, और एक फोड़ना वो है जिसपे लेबल अल्लाह रसूल की मोहब्बत का लगा हो। बताओ ये दूसरा फोड़ना ज्यादा खराब है कि नहीं है? महबूब की मोहब्बत में खाया जा रहा है। अरे मोहब्बत में तो भूख लगना बंद हो जाती है। कि आजकल मार्केट में जिस किस्म के नबी के आशिक आ रहे हैं, आप उनकी खुराक देखो यार, खाए जा रहे हैं। फिर खाने पीने के इतने धंधे। इस्लाम में तो खाने के 3 मौके हैं, एक ईद उल फितर पे खाओ, एक ईद उल अजहा पे खाओ, एक वलीमे पे खाओ, और एक अकीके पे खा लो। चार मौके हैं, अकीके पे,
عید الاضحیٰ پہ، عید الفطر پہ اور ولیمے پہ. یہ 4 موقع ہیں کھانے کے اسلام میں. اس کے علاوہ بھوکا رہنا سنت ہے، فاقے سنت ہیں، روزے رکھنا سنت ہے. نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، ایام 20 کا روزہ رکھتے، اور بعض دفعہ حدیث میں آتے ہیں امی عائشہ فرماتی ہیں بغیر دن کے تعین کے رکھتے چلے جاتے، اتنے رکھتے کہ ایسا لگے گا کہ آپ ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے. پھر چھوڑنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ آپ اب روزہ دوبارہ نہیں رکھیں گے، پھر رکھنا شروع کر دیتے. اور جب روزے چھوڑتے بھی تھے تو اتنا کھاتے نہیں تھے جتنا ہم کھاتے ہیں. ناشتے کا اس دور میں تصور نہیں تھا. دوپہر کا کھانا ہوتا تھا 11:30-12 بجے، یہی ناشتہ یہی کھانا. اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے، اس کے بعد مغرب کے بعد رات کا کھانا کھاتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ 2 ٹائم. اور یہ بھی ہمارے نبی کا معمول نہیں تھا. ہمارے نبی کا معمول 1 ٹائم، ایک وقت فاقہ اور ایک وقت کھانا. اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کس وقت فاقہ ہوگا. گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے. ہم جب آتے ہیں تو ہم یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، ہم کہتے کیا کھانے کو ہے. ہمارے مطلب کی چیز ہے تو کھائیں گے، نہیں تو کچھ باہر سے منگوائیں گے. کھانا ضرور ہے، آج اچھا نہیں پکا تو چلو نہیں کھانا، یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے مطلب کا نہیں پکا تو باہر سے آئے گا. پیزا آرڈر کرو بھائی. کھا بھی کیا رہے ہیں یار؟ برگر جو چیز جس شکل کی ہوتی ہے نا ماہرین کہتے ہیں کہ قدرت نے نا میسج دیا ہوا ہے. جیسے اخروٹ بادام جیسا ہوتا ہے، دماغ جیسا ہوتا ہے، تو اس میں اللہ نے میسج دیا ہے کہ یہ کھاؤ گے تو ڈائریکٹ کھا کر کے کہاں لگے گا؟ دماغ. اور واقعی بادام آنکھ جیسا ہوتا ہے، بادام آنکھ کے لیے مفید ہے. تو ایک اللہ نے ایک پیغام دیا ہوا ہوتا ہے بہت سے پھلوں کے اندر، بہت سی چیزوں کے اندر. تو برگر کس جیسا ہوتا ہے؟ برگر جیسا ہوتا ہے. تو برگر کھاؤ گے کیسے بن جاؤ گے؟ برگر جیسا. پراٹھے کھاؤ گے کیسے بنو گے؟ پراٹھے کو چبانا مشکل کام ہے. برگر کھاؤ گے تو برگر جیسے ہو جائے گا، جیسے برگر فیملیاں دیکھی ہوں گی آپ نے. جتنا دباؤ دبتا چلا جائے گا، کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں. تو ہمارے نبی گھر آ کے امی عائشہ سے پوچھتے ہے کہ نہیں ہے کچھ کھانے کو، تو وہ بتاتی ہے تو کھا لیتے، فرماتی نہیں ہے تو اکثر پھر روزے کی نیت کر لیتے کہ چلو بھائی شام تک تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے، روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. آج دیندار ہونا اور کھانا یہ لازم اور ملزوم ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کھانے کے بعد میٹھا تو سنت ہے. انہوں نے کہا کھانا ہی سنت نہیں ہے، فاقے کرنا سنت ہے. اور ایک چیز کھایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور ہے تو صرف کھجور، اسی سے سیر ہونا ہے. یہ نہیں کہ کھجور میں مکھن جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ملائی ملا کے مکھن ملا کے. روٹی ہے تو صرف روٹی، ایک خوراک. دودھ تو صرف دودھ سے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی شدید بھوک لگی ہو، صرف دودھ سے پیٹ بھریں، بہت مزہ آئے گا. دودھ جزو بدن بنے گا. یہ جو آج کل دودھ پی کے بھی کیلشیم کی کمی پوری نہیں ہو رہی، اس لیے کہ دودھ سے پہلے 2 پراٹھے کھا چکا ہوتا ہے، اس کے بعد کیلشیم کے لیے کیا پی رہا ہوتا ہے؟ دودھ. وہ دودھ پریشان ہوتا ہے کہ جگہ کدھر بناؤں میں، ساری جگہیں تو ڈبل روٹی اور انڈوں نے لے لی ہے، میرے لیے تو کوئی اسپیس چھوڑی نہیں ہے اس نے. تو تباہی کرے گا، وہ دھماکے سے پھٹے گا. تو شدید بھوک کی حالت میں جب بھوک لگی رہی، ہمارے نبی نے کیا پیا ہے؟ دودھ. اور آپ کر کے دیکھیں یہ کام. شدید بھوک جب لگے تو آپ صرف کھجوریں کھائیں، آپ کو نقصان نہیں دیں گی، طاقت آئے گی، توانائی آئے گی باڈی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک روایت میں آتا ہے دودھ میں شہد ڈال کے پیش کیا گیا، آپ نے منع کر دیا پینے سے. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے. یہ وجہ نہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، یہ وجہ کہ آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی. گویا اس کو عیش و عشرت سمجھا کہ 2 لذتیں ایک ساتھ. شہد بھی اور جائز ہے، پی سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. بہت سے صحابہ پیتے ہوں گے، نبی نے منع نہیں کیا ان کو، جنہوں نے ایسی زندگی رکھی جیسے مالداروں کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا. اور اس میں ایک نقطہ بھی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے ملاتے ہیں نا، تو اس کا وہ سارا فارمولا ہی چینج ہو جاتا ہے. بھائی شہد ویسے ہی کھا لو یار، وہ خود ایک کمبینیشن ہے مختلف چیزوں کا. دودھ خود ایک کمبینیشن ہے، مرکب ہے بہت ساری چیزوں کا. اتنی 20 چیزیں ملا کے ملغوبہ بنا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کھا رہے ہوتے ہیں. لگتا پھر کچھ بھی نہیں ہے باڈی کو. خیر، تو ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. تو وہ جو مجنو تھا وہ کیا کرتا تھا؟ تو لیلا اصل جو سچی مچی کا مجنو تھا، جیسے میں سچی مچی میں گیا نا، تو سچی مچی کا سچی مچی کا جو مجنو تھا، وہ سچی مچی سے مجھے یاد آتا ہے. میں نے کہا تھا نا سچی مچی میں جاؤں گا، تو دیکھ لینا سچی مچی میں گیا، وہ خواب تو نہیں دیکھا نا آپ لوگوں نے. تو جو سچی مچی کا مجنو تھا نا، مجنو وہ کیا ہوا،
وہ बेचारा कह रहा है ये धदियों पे टरखा रही है, मुलाकात का टाइम नहीं दे रही, शादी की डेट फिक्स नहीं कर रही है। झूठी मूठी का मजनू बैठ के आता और दूध जलेबी रोजाना खा खा के मुस्टंडा बंदा चला गया। एक दिन लैला को ख्याल आया कि रोज दूध जलेबी भेज रही हूं और खा के चला जाता है। खादिम से कहा चेक करके बताओ ये सच्ची मुच्ची वाला है या झूठी मूठी का है। अब खादिम को क्या पता, उसने सच्ची मुच्ची का देखा ही नहीं था। उसने कहा जी मुझे तो नहीं पता, पहले कोई तस्वीरें भी नहीं होती थी, मोबाइल से तस्वीर खींच के लेकर आओ। तो इसने कहा चलो मैं उसको आजमाती हूँ, मैं कहती हूँ कि आज खाली प्याला लेके जाओ और उससे कहना आज लैला ने तुमसे तुम्हारा खून मांगा है, थोड़ा काट के ना जरा प्याले में खून भर के दे दो, इसी से पता चल जाएगा सच्ची मुच्ची का है क्या। तो जब वो खादिम खाली प्याला लेके आए ना तो मजनू के तो होश उड़ गए। क्या हो गया भाई, ये जलेबी कहाँ है इसमें? उसने कहा लैला ने आज तुमसे तुम्हारा खून मांगा है। तो कहता है हम जलेबी खाने वाले मजनू हैं, खून देने वाला वो बैठा हुआ है। समझ रहे हो, खून देने वाला। आज आप हकीकी आशिकीन को देखना चाहो तो आप दुनिया में सर्वे करके देख सकते हो कि खून देने वाले कौन और जलेबी खाने वाले, बोलो, ये पता चल जाएगा। खून देने वाले अलग हैं, जलेबियां खाने वाले अलग ही होते। पहला चीज क्या है, दुनिया को मुसाफिर खाना समझे इंसान। जब मुसाफिर खाना समझे तो कामयाबी के असबाब इख्तियार करेगा, कामयाबी को दिमाग में मुसल्लत नहीं करे। अल्लाह दे दे कामयाबी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक। दूसरी चीज अल्लाह पे तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब ये होता है अल्लाह ने जो कानून बनाया है अमल का, मैं उसको तो फोकस करूंगा, हर कामयाबी का सबब मैं इख्तियार करूंगा, नतीजा मेरे हाथ में नहीं है। नतीजा जो भी निकले, चाहे उल्टा निकले, वो मेरे लिए बेहतर ही होगा। मैं बार बार मिसाल देता हूं ना याकूब अलैहिस्सलाम की, सारी जिंदगी टेंशनों में, सारे नतीजे उल्टे ही निकल रहे हैं। एक बच्चा गुम हुआ, फिर दूसरा भी गुम हो गया, लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे हैं, जो हो रहा है मेरे हक में क्या हो रहा है, बेहतर। रिजल्ट क्या हुआ, बेहतर हुआ ना, रिजल्ट सबसे अच्छा हुआ। जकरिया अलैहिस्सलाम को औलाद ही नहीं मिल रही, दुआएं मांग मांग के आखिर में औलाद मिली, ऐसी मिली कि पैगंबर दे दी अल्लाह ने, पैगंबर मिल गए उन। तो यानी हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, यानी इन दो बातों का मैं खुलासा बयान कर रहा हूं उनकी जबान में, कि रिजा बिल कदर, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द, कि जो मेरे साथ होगा वो मेरे हक में बेहतर, बस मैं उस पर राजी हूं। मैं खुदा नहीं हूं, खुदा कोई और है, बस जो होगा क्या होगा बेहतर। लेकिन इसका दीनदार लोग गलत मतलब लेते हैं, जो होगा बेहतर होगा, लिहाजा भाड़ में जाए, जो मर्जी करना है करते रहो, बैठे होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा। ये गलत मतलब है। अबे शुगर का मरीज लड्डू खा रहा है बैठ के, उसको कोई समझा रहा है भाई ये तेरे खाने की चीज नहीं है, मरेगा, वो कहेगा मैं अल्लाह की तकदीर पे क्या हूं, राजी हूं। ये मतलब नहीं है। आपने हमाकतों के सारे काम कर लिए, आप कमाने की कोशिश नहीं करते। जब बीवी बच्चे सलावातें सुनाते हैं डिप्रेशन में जाते हैं, और फिर जब डिप्रेशन स्ट्रेस होती है तो आप कहते हैं मुफ्ती साहब ने कहा है कि इस्लाम ये कहता है कि किसी चीज की टेंशन ना लो, लिहाजा मैं इसकी टेंशन नहीं ले रहा। ये मतलब हरगिज नहीं है। अपनी तरफ से आपने कामयाबी के तमाम असबाब इख्तियार करने हैं, फिर नतीजे की टेंशन नहीं लेनी, फिर अल्लाह की मदद होगी। अगर अपनी हमाकतों की वजह से आप पर आजमाइशें आई हैं, उसमें अल्लाह आपके दिल को सब्र के लिए नहीं थामता। उलमा कहते हैं आपकी हमाकत से जो परेशानी आएगी उसमें आपको सब्र की तौफीक नहीं मिलती। आपने काम सही कर रहे, फिर भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई, उस आजमाइश में अल्लाह की तरफ से सब्र की तौफीक मिलती, अल्लाह दिल को थाम लेता है। आजकल जो आजमाइशें और टेंशनें आ रही हैं वो अल्लाह की तरफ से नहीं आ रही, वो मेरी और आपकी हमाकतों से आ रही हैं। समझते हो, इनमें सबसे बड़ी हमाकत जो हमारी पाकिस्तानी कौम का, बल्कि अक्सर मुस्लिम कौम का अलमिया है, वो हमाकत है सुस्ती और काहिली। ये जो मैं बातें करता हूं मैं अपने लिए भी करता हूं कि मुझे भी हिदायत मिले। आप ये ना समझे मुफ्ती साहब पता नहीं कितने चुस्त और एकदम सुबह सुबह 4 बजे उठ के इनकी एक्टिविटी शुरू, और एकदम ये नहीं, मैं अपने लिए भी कर रहा होता हूं कि मुझे भी अल्लाह तौफीक दे। हम लोग किसी भी चीज के असबाब को बिल्कुल भी इख्तियार बोलो नहीं करते। जैसे आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, नहीं दिमाग लगा, छोड़ दो पढ़ाई, लेकिन जिस काम में दिल लग रहा है वो तो करो, फिर कुछ और तो करो, ठेला ही लगा लो। ये जो सारा दिन पड़े हुए हैं ना पोस्तियों की तरह, यानी देखो एक होता है आराम। आराम की डेफिनेशन क्या है, जब आप अहम कामों में थक जाए तो बॉडी को क्या दें, आराम। तो आराम मकसद नहीं होता,
आराम अहम कामों के लिए बॉडी को दोबारा से तैयार करना, इसको क्या कहा जाता है? रेस्ट। समझते हो इसको क्या कहा जाता है? रेस्ट। हमारे यहां अलमिया ये है आराम मकसूद है। काम जब सर पे मजबूरी में, अजाब में, टेंशन में आता है ना कि मर ना जाऊं, फिर काम करना शुरू कर देते हैं। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। हर आदमी की ख्वाहिश है मैं पड़ा रहूं आराम से, इल्ला ये कि कोई आसमानी आफत न, आसमान ना फट जाए, कोई बहुत बड़ा अजाब ना आ जाए मेरे ऊपर। जैसे आप दफ्तर जाओगे तो दफ्तर आप उस वक्त तक नहीं पहुंचते जब तक कि आपको यकीन है कि अब मजीद लेट हुआ तो अब बॉस की तरफ से सलावातें सुनने को मिलेगी। अब उठना मजबूरी बन चुकी है। इसका मतलब आराम असल था, काम क्या हो गया? एक जुज़वी। यही हो गया कि नहीं हो गया? तो ये लाइफ स्टाइल सही नहीं है। इसमें आपको अगर नाकामी मिलेगी तो ये नाकामी अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये किसकी तरफ से है? आपकी तरफ से। आप अगर सुबह शाम उल्टी सीधी चीजें फोड़ फाड़ के आपने बराबर कर दी हैं और फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, आपको हार्ट के मसाइल शुरू हो गए, आपको शुगर, आपके गुर्दे में मसले, तो ये बीमारी अल्लाह की तरफ से नहीं है। ये किसकी तरफ से मेरे भाई? आपकी अपनी हमाकतों की वजह से। इसलिए इन बीमारियों में, आजकल बीमारियों में आमतौर पे सब्र की तौफीक मिल नहीं रही होती। ठीक है, क्योंकि ये किसकी हमाकतों से होती है? अल्लाह की। और इसमें तसल्ली भी नहीं मिलती। जब आदमी रोता है कि वो उस वक्त मुझे कह रहे थे ये ना खा ये ना खा। मैं आपको एक सेहत की छोटी सी बात बता दूं, आप रोजे रखना शुरू कर दो, इतनी खानदानी सेहत हो जाएगी ना कि ऐसी खानदानी हो जाएगी कि बस पूछो ही नहीं। रोजा ऐसी सेहत के लिए ऐसी मुफीद चीज है, बुढ़ों को जवान कर दे, ऐसी चीज है ये। समझ रहे हो? इसको हल्का ना समझो आप। इस पे अब आजकल बड़ी जदीद रिसर्च, तजर्बे से बढ़कर कोई दलील होती है। आप चंद दिन रोजे रखो, आपकी आंखें रोशन होना शुरू हो जाएंगी, ऐसे हल्के फुल्के, और फिर कम खाने की आदत पड़ जाएगी आपको। मैं अपनी तारीफें कभी भी नहीं यहाँ बैठ के करता, सिर्फ मिसाल देने के लिए। मैंने सुबह से लेके अब तक बमुश्किल एक रोटी खाई होगी। सुबह पराठा खाया था, वो भी आधा, इतना सा था। एक तो पराठा, बड़े पराठे का आधा ही हो गया वो। और मेरा ख्याल है मैंने दोपहर भी आधी रोटी खाई हो। तो मैं बिल्कुल फिट फाट, मुझे कोई वीकनेस, कोई कमजोरी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हम कह रहे हैं ना फोड़ते जाओ फोड़ते जाओ फोड़ते जाओ फोड़ते जाओ, ये दिमाग खराब हुआ है ना, ये किसी ने गलत पट्टियां पढ़ाई हुई हैं। दोपहर में जब रोटी खाने के लिए बैठा ना, तो मेरे पास आज कैलूले का टाइम नहीं था, खाने के बाद आराम का टाइम नहीं था। मुझे पता था ज्यादा खाऊंगा नींद आएगी, सारा दिन का बेड़ा गर्क हो जाएगा मेरा। तो मुझे चंद लुकमे खाने के बाद अंदाजा हो गया कि मुझे कमर सीधी करने के लिए, चलने फिरने के लिए जितना खाना था ना, जो वीकनेस हो रही थी, सुबह से थोड़ा सा पराठा खाया हुआ था तो वीकनेस होती है, आदमी को कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो मुझे अंदाजा हो गया कि इतने निवाले मैंने पेट में डाल दिए कि अब मेरी कमर सीधी हो गई, वो जो वीकनेस हो रही थी वो खत्म। तो मैंने हाथ रोक लिया अपना, क्योंकि अब मैं मजीद खाता तो लंबा होना पड़ता मुझे। मजीद खाओगे आप क्या होगा? फिर टोन बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, तो फिर देखो ना, लोग कोई बैठे होते, कोई टेढ़ा बैठा होता है। पाकिस्तानी को कभी आप सीधा नहीं देखो, खड़ा हुआ होगा तो टेढ़ा खड़ा होगा, बैठेगा तो टेढ़ा। वजह क्या है? इतना पेट भरा हुआ है कि सीधा हुआ ही नहीं जा रहा उससे। आप ज्यादा खाओगे आपको हुनूदगी आएगी। फिर उसमें बाद भी मैंने थोड़ा सा कैलूला किया है, क्योंकि थोड़ी सी भी रोटी खाओ तो हल्की फुल्की नींद आती है। वो कैलूला क्या किया है? असर की आजान 5:15 पे और नमाज 5:30। तो मैं 5:15 पे लेटा हूं, 5:30 का अलार्म लगा के। समझते हो? इतनी देर में जो आंख लगी है, फिर भागता हुआ आके वुजू करके जमात में शामिल हो गया, फ्रेश हो गया। इतनी नींद काफी होती है अगर आप खाना खा लो। तो ये जो फोड़ना फाड़ना, इधर से ये खा लिया, उधर से मुद्दसिल लुहला लिया, सब कुछ खा लिया, इधर से ये खा लिया, इधर से ये खा लिया, या तो बहुत आपने एक्सरसाइज की हो कि बड़े बड़े वेट उठाए हो आपने, और फिर आपकी बॉडी मांग रही हो कि खा जा इसको, अगर अभी खाना नहीं मिला तो ये इंसानों को खा जाएगा, इतनी भूख लग रही है। फोड़ते हुए मजा भी आता है यार। सुबह से हमने कौन सा कोई वेट लिफ्टिंग की है। तो ये रमजान के हवाले से भी बात हो गई ना कि रोजा जो है ना, रोजा ऐसी खानदानी चीज है, सेहत के लिए बहुत ही मजे की चीज है ये। लेकिन रोजे में 2 चीजों का ख्याल कर लें, बस मैं ये करके फिर असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। रोजे में 2 चीजों का ख्याल कर लेना चाहिए कि जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है ना, वो रोजे में रोटी चावल छोड़ने का उनके पास बेहतरीन मौका है। कम कर दें ये, बाकी चीजें फोड़ें आप, ठीक है ना। गोश्त फोड़ें, खजूरें फोड़ें, दूध फोड़ें। ये सिर्फ तजर्बा कर लें कि रमजान में आपने रोटी और चावल क्या कर देना है। चाट भी खाएं आप। मेरा तजर्बा है, हो सकता है ये इनकी राय कुछ और हो, मैं तो अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ। प्रोफेशनल आदमी तो ही है, ये आपको बताएंगे क्या करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। लेकिन मैं अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ कि आप जब इफ्तारी के लिए बैठते हैं ना, नफली रोजा भी रखें, कभी इफ्तारी के लिए बैठते हैं, आप काले चने की चाट खा लें आप,
सफेद चने की चाट खा ले, हर वो चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट कार्ब कम हो। गंदम जो है ना, ये जो रोटी आजकल हम खा रहे हैं ना, ये वैसे चीनी से बच रहे हैं लोग। रोटी खा ली तो बस गुड़ खा लिया आपने, ठीक है ना। रोटी में बहुत ज्यादा, तभी तो रोटी खा के टोन होता है आदमी। इफ्तारी में बहुत से लोग कहते हैं हम इफ्तारी खा के निढाल हो जाते हैं, उठा ही नहीं जाता। आप इफ्तारी में लेमन का शरबत पिएं और ये चाट माट खा लें, रोटी ना खाएं, तो आप नहीं निढाल होंगे और फ्रेश हो जाएंगे आप। समझते हो कि नहीं समझते? तो इफ्तारी में ये रमजान जो है सेहत बनाने का ऐसा बेहतरीन, और इससे फिर आपको पूरे महीने जब आप कंटिन्यू ये रूटीन रखेंगे आपको आदत पड़ जाएगी। मैंने अक्सर देखा है रमजान गुजरने के बाद ईद में ज्यादा भूख लगती नहीं है, फिर बल्कि पेट खराब हो जाता है ज्यादा खा लोगे आप। तो कुदरत ने आपको एक बहुत अच्छी सहूलत दे दी कि अब आप ईद के दिन थोड़ा कंट्रोल कर लें। आपको कंट्रोल करने की आदत पड़ गई है, लेकिन हम पेट खराब कर करके ना उस आदत को क्या करते हैं, ईद के दिन थोड़ा सा खाएंगे पेट भर जाता है। लेकिन हम कहते हैं यार मैंने रमजान से पहले तो ये पूरी प्लेट भर के खाई थी, तो मेरा आधी में क्यों भर गया पेट। अब पेट कह रहा होता है नहीं जरूरत, आपने कहा नहीं मैं तो ठोसूंगा, मैं तो ठोसूंगा। वो ठोस ठोस के फिर वही हो जाता है, थोड़े देर मर जाएंगे और दिमागी पटपटा जाएंगे, और क्या हो। मरना भी इतना मसला नहीं है भाई, जितने दिन जियो सेहत के साथ जियो, खुशी के साथ जियो, दिमाग फ्रेश हो, आंखों की रोशनी सही हो। तो ये खाने से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। भूख से मरने वाले दुनिया में उंगली पे गिने हुए लोग होंगे, खा के मरने वाले जितने इस वक्त लोग मर रहे हैं 99% वो है जो खा के मरे हैं। कब्रिस्तान में जाओ, अगर कब्रों पे मौत की वजह लिखी हुई हो ना, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें लिखा होगा इनको खाने को नहीं मिला था इसलिए मर गए, एक भी ऐसा नहीं। जितने मुर्दे पड़े हुए हैं ना, हजरत को हार्ट अटैक हुआ था, क्यों हुआ था? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था। कोलेस्ट्रॉल लेवल से क्या हुआ जी, रगें ब्लॉक हो गई। तो क्या था असल में, घी के पराठे बहुत खा लिए थे, बहुत ज्यादा फोड़ दिए थे। उस दिन रात को जब ये आए, इतना खाया इन्होंने, इतना खाया कि सुबह पुलिस भी उनको नहीं उठा सकती, ठीक है। ऐसा मरे हैं ये। तो जितने आपको मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। तो ये हमारे मजहब की भी तालीमात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। फिर फरमाया झूठ फैल जाएगा मुआशरे में, और फिर आपने फरमाया मोटापा फैल जाएगा। तो मोटापे का क्या मतलब? फोड़ने फाड़ने वाले लोग आएंगे। तो ये हमारे मजहब की भी तालीमात हैं कि इंसान खाने पीने में क्या करे। तो रोजा इसी वजह से तो रखवाया जाता है कि फोड़ने फाड़ने की आदत को खत्म करो। समझते हो कि नहीं समझते?